Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and very good morning to all my dear students. Today we are going to start our new topic, that is 2.2, the three questions. Understood? In last period I have explained in front of you 2.1, that was animal. Understood? I hope you understood very well it is. So today I am going to start the new topic, the three questions. The meaning of this lesson is that very easy, three question, तीन सवाल. Understood? It is very nice story, and from which we can get so many ideas and so many things we can learn from this story. So in that, first of all, I would like to tell you a person who has written this story. His name is Leo Tolstoy. Understood? He written very nicely this story. First of all, I would like to give you an intro about him. So, Leo Tolstoy was a Russian writer who is regarded as one of the greatest author of all time. This writer belongs to Russia, and he is one of the best author of all time. हर वक्त के जो है मशहूर राइटर रहे हैं. He first achieved literary acclaim in his 20s with his semi-autobiographical trilogy, Childhood, Boyhood and Youth. Understood? Whatever he has written, mentioned here, autobiographical तो जो खुद के बारे में, जो himself इंसान खुद के बारे में लिखता है, but it is semi-autobiography. Semi-autobiography means that he has written himself autobiography. उनकी जो है उनके बारे में उन्होंने खुद ने लिखा है, but it is semi means that इसमें जैसा कि इट्स नॉट ऑल रियल, इसमें थोड़ा सा जो है तो मिक्स करके इसको क्लाइमेक्स बनाने के लिए, जैसा कि हम लोग हमारे ज़बान में नमक मिर्ची लगा के जो है बोलते हैं, तो वैसा उन्होंने इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ ख्यालात भी ऐड किए हैं खुद से. सो इट्स मीन्स ट्रायलॉजी, यानी जिसके जो है जिस पे उन्होंने 3 स्टेज में जिसको बयान किया था उनकी. पहले चाइल्डहुड जो बचपन है जिसको बोलते हैं हम लोग जो है 9 साल तक, 1 साल से 9 साल तक के, 1 to 9 years. देन बॉयहुड मीन्स 9 to 16 or 18 years, that and then youth means 18 to 26. Parable is a short story with a moral lesson. Parable जो है तो एक short story. Parable means a short story. A moral lesson. A parable usually has human character. ये जो parable रहता था उसमें usually हमेशा ही जो है एक human character जो है डिफाइन करता था. Parable आपको अगर पूछा गया in exam, someone asks you to write a parable on a king. It means that a short story. Understood? Short story आप समझना चाहिए. This parable concerns a king who wants to find the answer to what the consider to be the 3 most important question in life. ये जो स्टोरी है, whatever we are going to explain in front of you, ये स्टोरी भी जो है तो किंग पे डिपेंड करती है. किंग क्या चाहते हैं कि उनके 3 क्वेश्चन के आंसर चाहते हैं. That is the name of our lesson. 3 questions. What is it? I will recite, I will read in front of you and I will explain. You have to understand it is not a hard story, so no need to write the hard word over here. Very simple language story. As usual we can learn, we can just listen the story of our grannies and grandpa, same as it is in the stories over here, but we can take so many positive things from this story. So I will explain in front of you. क्योंकि बादशाह की स्टोरी की हम लोग पहले सुनते थे कि हर वक्त जो है तो बादशाह राजाओं में और जो उसके जो प्रजा है उनमें क्वेश्चनिंग चलती रहती थी, विच इज़ डिपेंडिंग ऑन दिस. अंडरस्टूड? सो जैसा कि हम लोग सुनते हैं अकबर बीरबल की स्टोरीज, इन हैड ऑलवेज वी कैन लर्न, वी कैन लिसन वन थिंग मीन्स कि राजा और बीरबल की अकबर और बीरबल की स्टोरी. बीरबल को जो है अकबर ऑलवेज ही विल डू द क्वेश्चन टू हिम. फॉर एग्जांपल जैसे एक बार बीरबल ने अकबर ने बीरबल से पूछा कि आप बता सकते हैं कि हाउ मेनी क्रोज इन आवर
और एरिया, हमारे जो एरिया में, हमारे जो शहर में कितने कौवे हैं। तो ही सडनली गिव द आंसर बीरबल टू अकबर कि सर 5,000 कौवे अपने इंडिया में हैं, अब सॉरी अपने एरिया में हैं। सो उस वक्त बादशाह ने बोला हाउ यू कैन यू से दैट, इतना फास्ट तुमने कैसे बोल दी कि 5,000 कौवे है। तो उसने कहा कि अगर सर 5,000 से कौवे अगर कम रहे तो ये समझ लेना कि उसमें कि 5,000 में से कुछ कौवे जो है तो माइग्रेशन करके दूसरे एरिया में चले गए, और अगर 5,000 से ज़्यादा होगा तो ये समझ लेना कि 5,000 कुछ कौवे बाहर से जो है तो अपने एरिया में आ गए। दैट वाज द क्वेश्चन एंड आंसर। ऑलवेज वी कैन आस्क अमंग दिस, वी कैन लिसन अमंग द पीपल्स। हम लोग जो राजा और महाराजाओं के टाइम पे हम लोग ये सुनते थे। तो सेम एज इट इज वन king wants to solve his problem. Problem is that he wants to answer of the 3 questions. 3 क्वेश्चन के सवाल जानना चाहते हैं। तो I will just read in front of you. Once a certain king had an idea. एक king को जो है तो एक आइडिया आया। If he always knew the right time to begin everything. इसने सोचे कि हमको तो पता रहता है कि हम सोचते हैं कि if he always knew that right time to begin everything. हम सोचते हैं कि हमारे नई चीज शुरू करने के लिए हमें सही टाइम है। If we know who were the right people to listen to and who to avoid the most important thing to do, he would never fail in anything that he would undertake. And above all, if he always knew that was the most undertake. Understood? Since he was convinced that he was right to think his way, he had a proclamation made in his kingdom. Understood? What I am telling to you, a king wants to 3 questions. First question was वो चाहता था कि किसी चीज़ का काम करने के लिए सही वक्त कौन सा है। अंडरस्टूड व्हाट ही वांट, कि हमको जो है हर काम करने के लिए सही वक्त क्या है, 1 क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ही वांट टू नो कौन सा ऐसा काम है जो हम लोग किसी लोग, वो कौन सा शख्स है जो हमको सही बता सकता है कि वो सही काम क्या है, और सबसे सही वर्क क्या है, सबसे सही काम क्या है। सो ही वांट्स टू नो दिस क्वेश्चन। सो ही अनाउंस्ड, इसने क्या किया, अनाउंस किया, मेड इन हिज किंगडम, उसके किंगडम में, उसके राज्य में क्या किया उसने जो है तो एक अनाउंस किया। व्हाट वाज द अनाउंस? He would give a great reward to anyone who would teach him what the right time was for every action. इसने अनाउंस किया है कि जो मुझे ये बताएगा कि सही काम करने के लिए सही वक्त क्या है, आई विल गिव हिम द रिवॉर्ड। ही वांट्स टू गिव देम द रिवॉर्ड। रिवॉर्ड में उसको इनाम देना चाहता है। हु द मोस्ट नेसेसरी पीपल वेयर एंड हाउ ही माइट नो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू। कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हु द मोस्ट नेसेसरी पीपल वेयर एंड हाउ ही माइट नो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू। कि वो कौन सा शख्स है जो हमको बता सकता है कि सही वक्त क्या है और सही समय पर क्या कर सकते हैं। मेनी लर्न पीपल केम टू द कोर्ट, बड़े पढ़े लिखे पीपल जो है तो कोर्ट के सामने, कोर्ट में आए, बट दे ऑल गिव डिफरेंट आंसर इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन। और सभी ने जो है तो पहले क्वेश्चन का जो है क्या किया, अलग तरीके से आंसर दिया। अंडरस्टूड? No time for the action. In reply to the first question, some said that to know the right time for every action, one must draw up in advance a table of day. फर्स्ट ने रिप्लाई किया कि अगर हमको जो है तो हम लोग अगर किसी क्वेश्चन का आंसर सोचना चाहते हैं तो हमको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक अवर डेली टाइम टेबल। हमको क्या करना पड़ेगा, डेली टाइम टेबल बनाना पड़ेगा फॉर डे, मंथ एंड ईयर, दिन के लिए, महीने के लिए और साल के लिए, मोस्ट लिव स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू इट।
और उसके मुताबिक जो है तो हमें क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। जिसलिए जो है एक शख्स ने खड़े होकर उसका आंसर दिया। अंडरस्टूड। अदर डिक्लेयर दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड beforehand the right time for every action। दूसरे ने कहा कि बड़ा मुश्किल है कि जो है तो राइट टाइम उस एक्शन पर जानना उस वक्त, but that not letting oneself be observed in idle post time, one should always attend to all that was going on and then do that was most essential, yet others said that it was impossible for one man to decide correctly the right time for every action। किसी ने कहा कि ये तो बड़ा मुश्किल है वक्त पे बताना कि ये किसी काम करने से पहले बताना कि वो काम करने के लिए ये टाइम सही है। सबने अपनी अपनी राय जो है तो बादशाह के सामने रखी। That the king should instead have a council of wise people who would help him to fix the proper time for everything। फिर उसने जो है तो इसने क्या किया कि बादशाह ने और एक क्या किया, काउंसिल रखा जो है तो वाइज पीपल बोले तो होशियार लोगों की। इक्वली whereas where the answer to the second question, some said the people the king most needed were his counselor, other the priest, other the doctor, while some said the warriors। दूसरा जो क्वेश्चन था कि भाई सही शख्स कौन है जिससे हमको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बहुत लोगों ने क्या किए, आंसर दिए उसके, क्या किए कि वेयर दिस काउंसलर से अदर द पेरिस्ट जो पुजारी रहते हैं, किसी ने कहा डॉक्टर्स, किसी ने कहा वॉरियर्स जो लड़ाई में जंग लड़ने वाले सिपाही रहते हैं, किसी ने इनका जवाब दिया है। To the third question about what was the most important occupation, some replied that the most important thing in the world was science। फिर पूछा गया कि सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है जिंदगी का। तीसरा क्वेश्चन जो था तो सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है, यहाँ पे ऑक्यूपेशन दिया है, ये काम क्या है। तो बहुत सारे लोगों ने क्या जवाब दिया, इम्पोर्टेंट थिंग इज अ साइंस। जो इम्पोर्टेंट वर्क है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आज के दौर में क्या है, साइंस है। Others said it was skill in warfare, and other again that it was religious worship। The king was convinced by none of these answer and gave them reward to none। किसी ने कहा कि it was skill in warfare, and other against that it was religious worship। That king was convinced by none of these। किंग्स ने जो है जिन्होंने भी आंसर दिया उनके किसी भी आंसर से किंग क्या था, मुत्तफिक नहीं था कि वो क्या उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये आंसर सही है। किसी ने कहा साइंस है, किसी ने कहा कि जो है रिलीजन के हिसाब से जो है तो जो वर्शिप करना है ये सही है, बट ही नॉट अंडरस्टैंड। He decided instead to go to a hermit who was widely renowned for his wisdom। फिर इस बादशाह ने जो है इस किंग ने डिसाइड किया इंस्टीड टू गो द हर्मिट। एक जो है तो हर्मिट नाम का जो बंदा जो था, जो जिसको धर्मगुरु कहते हैं, वो ऐसा एक शख्स था who was widely renowned for his wisdom, जो उसके विजडम में जो है तो फेमस था। रिनोड वाइडली यानी फेमस था, रिनोड फॉर हिज विजडम। द हर्मिट लिव्ड इन अ स्मॉल हट, जो कि एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था हर्मिट। इन अ फॉरेस्ट और जंगल में, विच ही नेवर लिव्ड, ही स्पोक ओनली टू कॉमन फॉक, और उसकी क्वालिटी ये थी ही इज ऑलवेज टॉक विद अ पुअर पीपल्स, यानी गरीब लोगों से ही वो बात करता था, अमीरों से कभी जैसा जो बादशाहों से इन लोगों से वो भ्रमित बात नहीं करता था। सो द किंग पुट ऑन सिंपल क्लोथ्स एंड अप्रोचिंग द हर्मिट सेल्स।
तो फिर क्या किया किंग ने, बादशाह ने क्या किए कि अपने जो है तो सादे सूते कपड़े पहने और उसके वहाँ पहुँच गए। हरमित सेल सेल इज नॉट that body cell, it is regarding to the house, living place, उसके वहाँ रहने की जगह पे पहुँच गए। Dismounted his horse and left his bodyguard behind, और क्या किए कि अपने जो है तो अपने घोड़े को भी एक साइड बांध दिया और अपने जो है तो बॉडीगार्ड को भी पीछे छोड़ दिया और उसके पास में पहुँचे। So dear student, so I think so we have to stay here because it is very lengthy. In next period, we will start from this page number 53, from when the king arrived. I hope you understood this, whatever I am explaining in front of you. We will start the next page after remaining this passage. Okay, thank you.